Hello Earth class students, welcome once again in the session of online classroom. From today we are going to study our textbook, and today I am going to teach you the very first lesson, the best Christmas present in the world. This is a very nice story related to a soldier and his wife. You know very well that soldiers have to fight battles at any time, and sometimes the consequence will be catastrophic. Here we are reading about two main characters, Jim McPherson and his wife Connie McPherson. It is the story related about British and German war in 1914, and it was a time of Christmas. Now a strange thing happened in the battlefield, and it has been described in the story. कहानी जिम मैकपर्सन और उसकी वाइफ कॉनी मैकपर्सन के बारे में है। जिम मैकपर्सन एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, एंड द स्टोरी इज रिलेटेड टू अ बैकग्राउंड दैट सर्व ब्रिटिश जर्मन वॉर. So during that war, a strange thing took place, and the strange thing what was that we are going to start the lesson, and you can find out each and everything. Here in the beginning of the lesson, the writer makes us aware with something that has happened with him. Now here in this paragraph, the writer wanted a roll top desk, and he spotted it in a junk shop. You know what is junk shop? कबाड़ी की दुकान में उसने एक रोल टॉप डेस्क देखी. He needed it, that's why he purchased it. But the roll top desk was quite old, with a rough surface and burning marks on it. It was also in dilapidated condition and required repairing. So it was quite cheap, and that's why he bought it. But when he took the roll top desk at home, what had happened? देखो कहानी एक व्यक्ति की है जिसे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए, और वो इसे जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान में देखता है, जहाँ से उसे वो ख़रीद करके अपने घर लेकर के आता है. काफ़ी पुरानी रोल टॉप डेस्क है, रफ सरफेस है, जले हुए निशान हैं इस पर. वो सोचता है कि वो इसकी रिपेयर कर लेगा. बट व्हेन ही स्टार्टेड रिपेयरिंग ही फाउंड ए सीक्रेट ड्रॉर इन इट. उसे उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है जब वो उसकी रिपेयरिंग करता रहता है. उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर एक टीन बॉक्स होता है. व्हेन ही ओपन द टीन बॉक्स ही फाउंड अ लेटर रिटन ऑन इट, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. अब देखो उस पत्र के ऊपर, उस एनवेलप के अंदर जिसमें वो पत्र है, उस पर ये लिखा होता है जिम का लास्ट लेटर, जिसे 25 जनवरी 1915 को उसने रिसीव किया था. एंड देर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट हियर टू नोटिस, एंड वन मोर थिंग was also written that to be buried with me when the time comes. इसे मेरे साथ दफना देना जब समय आए. मतलब ये जिस व्यक्ति ने भी लिखी है इस बात को, ये समझो ये पत्र उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था कि वो ये कह रहा है कि जब समय आए इस पत्र को मेरे साथ दफना देना. नाउ द राइटर बिकेम क्यूरियस अबाउट द लेटर. क्या है आखिर इस पत्र के अंदर, वो काफ़ी अधिक जिज्ञासु हो गया. एंड ही स्टार्टेड टू रीड इट. नाउ ही फाइंड आउट दैट द लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकपर्सन टू हिज वाइफ कॉनी मैकपर्सन, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द वॉर टाइम स्टोरी. नाउ
There are two questions here. See, the question is, what did the author find in a junk shop? एक जंक शॉप के अंदर ऑथर को क्या मिला? तो द आंसर इज अ रोल टॉप डेस्क, मीन्स द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप. नाउ देर इज अनदर क्वेश्चन, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? उसे उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर क्या मिला? तो he found a tin box containing a letter in the secret drawer. Now there is question, who do you think has put it in there? आपकी सोच में इसे वहाँ किसने रखा है? तो I think that it has been put there by Connie McPherson, the wife of Jim McPherson. Is it clear? Now, what is written in the letter? The letter was addressed to Connie, the wife of जिम मैकपर्सन. मतलब ये पत्र किसने लिखा है? जिम मैकपर्सन ने उसकी पत्नी को लिखा है. In which he is going to tell her about what has happened during the war. So, I am going to tell you something in short. Here he said that I am going to write this letter to you in very happy frame of mind, and I am going to tell you that something has happened here that I must tell you about it once. Now there is a strange thing has happened here, and that I would like to tell you. Now here he told her that during the war, the Frieds means German soldiers. The German soldiers raised their hand and indicated for peace. Means it was the day of Christmas. And in between the war, the German desired to have a peace between them. Now the first of them raised a white flag, and from British side the soldiers responded them in the same way. Means both of the soldiers had stopped fighting. Now they wanted to celebrate Christmas. That's why what had happened, the German soldiers came out from their hiding ditches. देखो जहाँ वो छुपे हुए थे, उन छुपे हुए गड्ढों से वो बाहर निकले. कौन? जर्मन सोल्जर्स. और वो नो मीन्स लैंड के अंदर आए. नो मीन्स लैंड किसे कहते हैं? दो देशों की सीमाओं के बीच जो स्थान होता है, जो अनक्लेम्ड होता है, जहाँ कोई नहीं रहता, उस जगह को बोलते हैं नो मीन्स लैंड. सो ऑल द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स गैदर्ड इन द नो मीन्स लैंड एंड दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस देयर. It is quite strange thing that two enemies armies and the soldiers belonging to different armies were celebrating Christmas during the war time. Now it is quite strange. They exchange their eatables, they exchange their snaps, sausages, as well as whatever they have to drink and eat. They exchanged these things to each other. Now the German officer Hans Wolf and British officer Jim McPherson met each other and they talked about their life to each other. दोनों ब्रिटिश सोल्जर्स जो था हैंस वॉल्फ, सॉरी जर्मन सोल्जर्स, जो इसका आर्मी का जो चीफ था या ऑफिसर था, जर्मन ऑफिसर हैंस वॉल्फ और ब्रिटिश ऑफिसर जिम मैकपर्सन उस मैदान में, उस नो मैन्स लैंड में एक दूसरे से मिलते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं. वो कॉनी ने जो स्पेशल केक जिम के लिए बनाया था, उसने वो केक हैंस वॉल्फ के साथ शेयर किया. ये दोनों बातें करने लगे.
और इन्होंने एक दूसरे को बताया। क्या बताया? पहले हेंस वोल्फ ने उसे बताया कि आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ। आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ मीन्स मैं डजलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। एंड आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। वो बता रहा है कि सोल्जर बनने से पहले मैं एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक सेलो, एक काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे बजाता था। तो एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कि हेंस वोल्फ सोल्जर्स बनने से पहले क्या करता था? तो वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक सेलो बजाता था। एंड जिम ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट हिमसेल्फ दैट ही वॉज ए स्कूल टीचर। ही वॉज ए स्कूल टीचर इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड बिफोर बीइंग ए सोल्जर। तो हेंस वोल्फ इंग्लैंड के वेस्ट पार्ट में किसी स्थान पर एक स्कूल टीचर था, और जिम मैकपर्सन इंग्लैंड के किसी एक भाग में वेस्ट पार्ट में एक टीचर था, स्कूल टीचर, और हेंस वोल्फ एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाता था। नाउ दे टॉक्ड अबाउट देयर प्लेसेज। ही आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर यू आर एंड जिम मैकपर्सन रिप्लाइड दैट ही इज़ फ्रॉम डॉर्सेट। तो जर्मन ऑफिसर ने उससे पूछा था कि तुम कहाँ के रहने वाले, उसने बताया डॉर्सेट का, और डॉर्सेट का नाम सुन करके उस हेंस वोल्फ ने इस प्रकार रिएक्ट किया जैसे कि वो उसके बारे में जानता हो, वो उस स्थान पर पहले गया हो, जबकि वास्तविकता ये है कि वो उस जगह पर पहले कभी गया ही नहीं। एंड ही न्यू अबाउट डॉर्सेट ओनली थ्रू द बुक्स दैट ही हैड रीड ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। जो बुक्स उसने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, उन बुक्स से ही वो डॉर्सेट के बारे में जानता था, लेकिन वो स्थान उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। सिर्फ पढ़ कर के ही वो उस स्थान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। नाउ बोथ ऑफ द सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट आर्मी स्टार्टेड टू प्ले ए फुटबॉल मैच एंड दे ओपन देयर कोट्स, remove their coats, made the goalpost and started playing a match. Now both of the soldiers, German soldiers Hans Wolf and British soldier Jim McPherson, started to talk to each other. Now what was their feeling? वो सोचते थे कि काश सारे युद्धों का निर्णय गेम्स और स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर कोई नहीं मरता। देखो, दोनों ही सैनिक शांति चाहते थे, दोनों ही घर लौटना चाहते थे, दोनों के मन में युद्ध समाप्त हो जाए ऐसी इच्छाएं थी। मीन्स ये एक बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक डिस्क्रिप्शन है, देखो, जो बता रहा है कि नो वन वॉन्ट्स टू फाइट वॉर, नो वन वॉन्ट्स टू फाइट वॉर, नो वन वॉन्ट्स टू डाई अनटाइमली। तो वो दोनों इस प्रकार की बातें करते हैं, काश युद्ध समाप्त हो जाए, हम अपने घर जाएं, और युद्धों का निर्णय गेम्स और स्पोर्ट्स के माध्यम से हो तो कितना अच्छा है। नाउ द पार्टी वॉज ओवर एंड दे रिटर्न टू देयर प्लेसेस वंस अगेन। सो दिस वॉज द लेटर दैट जिम मैकपर्सन रोट टू हिज वाइफ दैट वॉट हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग द वॉर। अब आपको उस पत्र के बारे में समझ में आ गया है। Now we return to the story। जब राइटर को ये लेटर मिला उस रोल टॉप डेस्क के अंदर, तो उसने सोचा कि जिस किसी का ये पत्र है वो निश्चित रूप से इसके बारे में चिंतित होगा, उसके लिए ये एक बहुमूल्य भेंट होगी। तो उसने डिसाइड किया कि वो ये जो लेटर है उसके रियल ऑनर तक पहुंचाएगा। एंड इट वॉज द क्रिसमस डे। ही हैड फाइंड आउट द एड्रेस रिटन फ्रॉम द लेटर एंड ही वेंट टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस। और एड्रेस जो था उस पर लिखा हुआ वो क्या था? तो जो भी उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, लेखक उस लेटर को लेकर के उस एड्रेस पर पहुंचा। ठीक, अब देयर आर सम क्वेश्चंस, सी हियर।
द फर्स्ट वन, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when। पहला प्रश्न, ये पत्र किसने, किसको और कब लिखा। तो वी आर क्वाइट अवेयर अबाउट इट दैट द लेटर हैड बीन रिटन बाय जिम मैकपर्सन टू हिज वाइफ कॉनी मैकपर्सन ड्यूरिंग द वॉर टाइम, और देयर इज ऑल्सो ए डेट, द डेट वॉज 26 December 1914. The letter was written on 26 December 1914. Now, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? पत्र क्यों लिखा गया और कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। तो the letter was written to tell the whereabouts. The letter was written to tell the whereabouts of him to his wife Connie. And the wonderful event that happened there was a football match, exchange of food and sausage, and celebration of Christmas between two different army soldiers. Now, question, what job did Hans Wolf and Jim McPherson have? तो जॉब उनका क्या था, मैंने तुम्हें बता दिया। बिफोर बीइंग ए सोल्जर्स, हैंस वॉल्फ प्लेड ए सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकपर्सन वॉज ए स्कूल टीचर। नाउ द क्वेश्चन इज, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, वाई डिड ही से ही न्यू। क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट गया, लेकिन उसने क्यों कहा कि वो डॉर्सेट को जानता था। तो नो, ही नेवर वेंट टू, और नो ही नेवर हैड बीन टू डॉर्सेट, but he said so because he had read about Dorset in books during his school time. And the last question, क्या do you think Jim McPherson came back from the war? Do you know this? How do you know this? क्या आप सोचते हैं जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस लौटा होगा। आप इसके बारे में कैसे जानते। तो नहीं, नो, जिम मैकपर्सन never came back from the war because Jim's last letter is the indication of it that he had never returned from war. Now we shall study the remaining part of the lesson in our next